characteristic of Pakistan, Afghanistan, Iran, known as Golden Crescent, and drug-consuming nations Laos, Vietnam, and Myanmar, known as Golden Triangle. So the position of India is vulnerable due to its geographical location. As we all are aware, that menace of drug abuse has emerged as one of the most serious challenges confronting our society today. And every stakeholder in the criminal justice system, including the judiciary, prosecution, police, and other government agencies, are making wholehearted efforts to eradicate this social evil. They will not be the persons who are sitting across the border. They will be their agents who are sitting inside the border also. More drugs. If I am an investigator today and I find a person with commercial quantity of drugs, does my duty end there? Does my duty end there? Only doing the investigation, recovery, seizure, police report, FSL report, putting the challan before the court? Or I am supposed to investigate कि ये कहाँ से आई है, किसके लिए आई है और किसके लिए बेची जा रही है? We never go to that place where the drug is being sent. वो तो कोई नहीं पकड़ा गया आज तक कि ड्रग्स किसके लिए जानी थी. We are not even identifying that. जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होगा, ये चेन ब्रेक नहीं होगी. ना हमको कहाँ से शुरू हो रही है उसका पता है, ना कहाँ पे जा रही है उसका पता. We are only trying to pick up somewhere in the middle. It has to be, because whatever is the amount which is found with him, that will be considered, unless you are in a position to say that the quantity was given by him to somebody else and that somebody else is a traced person and evidence is created that the person was having it, then of course the situation may be different. Otherwise, whatever is recovered, that will be the quantities. Thanks a lot. These certificates. Number one is APP Priya Sharma, JMIC, Akhnoor. This is present this certificate to Priya Sharma, please. No, I'll call upon Passenger Tax Court Jammu, Shri Sunil Sethi, kindly distribute the certificate. Palvi. Thank you, sir. APP Pawan Deep Court, Forest Court Jammu. Now I will request Judge Sahab, Shri Pravesh Iqbal sir, to present the certificate to us. Thank you, sir. So I'll call upon APP Prakash Sharma, Second Additional Municipal Court Jammu. Shri Kuldeep Singh Patania, please. So I will call upon APP Natish Sharma, GMIC Vishna, to please come forward, and I will request Shri Ravinder Singh, our Deputy Director Prosecution. I will request all the dignitaries to please stay on the stage for the memento presentation to the speaker. Now I will request DG sir to present this memento to Senior Advocate Shri Sunil Sethi, please. Shri Pravesh Iqbal, Honorable Judge, will present this memento will be presented by DG sir.
Now DG sir will present the memento to Kuljeet Singh Pathania, advocate. I request Shri Rajesh Gill, DDP Jammu, to present the memento as a token of respect to our DG sir. For a vote of thanks, so I will request Madam Jamwal, CPO. आज एक इंटरेक्टिव सेशन रखा गया नशा मुक्त अभियान को लेकर भी 100 दिन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जी भी हैं और बड़ी बारीकी से बातें रखी और कहा कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि जहां पर और भी कई सारे एंगल जो हैं केसेस को सोचने के होते हैं। यानी अगर किसी के पास चिट्टा पकड़ा भी गया है, वो आया कहाँ से और ये भेजने वाले कहाँ पर थे, उन सब चीज़ों पर भी गौर फरमाना बहुत ज़रूरी है। सर वेलकम। और जिस तरीके से आज एक अहम इंटरेक्टिव सेशन रखा गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर लोग मौजूद थे, लेकिन अपनी अपनी बात जिस तरह से रखी गई, आपको लगता है इन बातों पर जिक्र करना, गौर फरमाना, और अक्सर हम देखते हैं कि इतनी क्वांटिटी के साथ ये बंदा पकड़ा गया, उसके पहले और बाद की चीज़ों को लेकर गौर कम फरमाया जाता है। किस तरह देखते हैं सेशन सर? देखिए, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की एक जो बड़ी मुहिम है उसके तहत ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें इंटरेक्टिव सेशन में ये पॉइंट्स को डिस्कस किया गया कि नारकोटिक के खिलाफ लड़ाई में जुडिशल सिस्टम जो है वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है। उसमें प्रोसिक्यूशन विंग जो है वो फोकस में रहा कि प्रोसिक्यूशन जो है उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे इंश्योर हो कि जो आदमी जिसने गुनाह किया है वो उसको जो है वो कोई सज़ा मिलनी चाहिए, वो बरी नहीं हो जाए। तो कुछ इन डेप्थ डिटेल्स थी जिसके बारे में डिस्कशंस रखी गई। इसमें जुडिशरी की साइड से भी पार्टिसिपेशन थी, जो स्पेशल जज एनडीपीएस कोर्ट्स के हैं उनकी साइड से, प्रोसिक्यूशन की साइड से भी पार्टिसिपेशन थी। मैं क्योंकि डिफेंस की साइड से काम करता हूं तो मेरी साइड से भी इनपुट्स जो दी गई, प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो है वो एक है, अपनी तरफ है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज को नई डायरेक्शन देना, नई दिशा देना। नारकोटिक के खिलाफ जंग में हर किसी को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर में नारकोटिक की प्रॉब्लम जो है उसका एक और एंगल भी है कि इसमें नारकोटिक और टेररिज्म का आपस में कोरिलेशन है। सो नार्को टेरर जो यहाँ पे इकोसिस्टम बना है उसको दुरुस्त करने के लिए सभी को साथ में आना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ, अपील करूँ जनता को भी कि जहाँ पे किसी को दिखता है कि नारकोटिक की कहीं पे सप्लाई हो रही है, डीलिंग हो रही है, तो उसकी सूचना जो है वो पुलिस को फौरन दीजिए, क्योंकि जनता जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगी, खाली ये सोचना कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन और कोर्ट सिस्टम जो है वो इसको ठीक कर देगा, वो नहीं होगा। जब तक जनता एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगी। सर एक सवाल अहम रहेगा, एक तबका समाज का ऐसा भी है जिनको ये लगता है कि इतनी मेहनत करके पुलिस वाले एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं, लेकिन क्या कानून तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग जो हैं वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं, फिर इंडल्ज हो जाते हैं इसी सिस्टम में। इस चीज़ को लेकर गलतफहमी दूर करने की कितनी ज़रूरत है कि कुछ क्वांटिटी को लेकर या कुछ ग्राम्स को लेकर शायद चीज़ें चलती होंगी, लेकिन ये जो लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि बड़ी जल्दी छूट जाते हैं, इसका क्या जवाब रहेगा सर? देखिए, ऐसा है कि ये ज़रूरी है इस चीज़ को मानना कि काफ़ी ज़्यादा केसेस में एक्विटल होते हैं नारकोटिक के केसेस में, और ज़्यादातर केसेस में एक्विटल जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर होते हैं कि कोई टेक्निकल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, जिसकी वजह से चलते जो है वो एक्विटल करना पड़ा कोर्ट को। उसी के बारे में आज ये इंटरेक्टिव सेशन था कि उन लूप होल्स के बारे में चर्चा की जाए और उसके बारे में बात की जाए कि इन लूप होल्स को कवर कैसे करना है, ताकि अगर कोई गुनाह करके आया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपीटेडली सेम लूप होल्स जो हैं उसके बारे में अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से या प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से, तो दैट इज रिजल्टिंग इनटू द फेलियर ऑफ द सिस्टम। तो ये पूरे का पूरा इंटरेक्टिव सेशन जो था वो इसी चर्चा के बारे में था कि ये जो रिपीटेडली प्रोसीजरल फ्लॉज रह जाते हैं उनको कैसे कवर करना चाहिए और कैसे ये सिचुएशन बनाए कि ये टेक्निकल और प्रोसीजरल फ्लॉ जो है वो न हो, ताकि जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिले।
बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील शेट्टी जी से सीनियर एडवोकेट है और आज इंटरेक्शन सेशन भी रखा गया जहां पर ना सिर्फ मैं कहूँगा कि कई सारे पुलिस के गणमान्य व्यक्ति थे। मैं एक बार चाहूँगा तस्वीर यहाँ भी दिखाने के लिए कि डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोसिक्यूशन आज चीफ गेस्ट के तौर पर श्री दीपक कुमार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ स्पेशल जज NDPS कोर्ट जम्मू श्री परवेज इकबाल जी, सीनियर एडवोकेट JNK हाई कोर्ट श्री सुनील सेठी जी और उसके साथ सीनियर एडवोकेट JNK हाई कोर्ट श्री कुलजीत पठानिया जी। मकसद एक ही था कि नशा मुक्त अभियान जो 100 दिन को लेकर LG प्रशासन चला रहे हैं उनको लेकर, उस मुद्दे को लेकर, उस मुहिम को लेकर और कौन से बेटर आइडियाज़ पर इंटरेक्शन हो पाए, बातचीत हो सके ताकि इस नशे को जो है जड़ से हम खत्म कर पाए। देखते रहिए फार्मर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।